السلام علیکم۔ خبرنامے میں پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ آندھرا اسمبلی کے پہلے اجلاس کا جمعرات کو آغاز، 20 جون کو اسپیکر کا انتخاب اور 21 کو مقننہ کے مشترکہ اجلاس سے گورنر کا خطاب۔ آندھرا حکومت کی جانب سے پی پی ایل کو برخاست کیے جانے کا فیصلہ جلد بازی اقدام، تلنگانہ کے سیاسی قائدین کی جانب سے مذمت۔ رمضان المبارک کے دوران مسلم سرکاری ملازمین کو جلد گھر جانے کی اجازت، تمام محکموں کو حکم نامے جاری کرنے عہدیداروں کو وزیر اعلیٰ کی ہدایت۔ تالاب کٹے میں 3 مقامات پر محکمہ چائلڈ لیبر کے دھاوے، 36 بچوں کو جبراً مزدوری سے آزاد کرایا گیا۔ اور ایل بی نگر میں ٹھہری ہوئی لاری سے بے قابو کار کا تصادم، 2 افراد برسر موقع ہلاک۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ آندھرا پردیش اسمبلی کے پہلے اجلاس کا جمعرات کو 11:52 پر آغاز ہوگا۔ اجلاس کے آغاز کے وقت کا تعین آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو نے کیا ہے۔ پرانی اسمبلی کے سینٹرل ہال میں یہ اجلاس منعقد ہوگا۔ پہلے دن عبوری اسپیکر پی نارائنا سوامی نومنتخب ارکان کو حلف دلائیں گے۔ عبوری اسپیکر کو گورنر صبح 9:15 پر حلف دلائیں گے۔ تلگو دیشم کے آنجیانی رکن اسمبلی ٹی پربھاکر راؤ اور شوبھا ناگی ریڈی کو خراج پیش کیا جائے گا۔ 2 ارکان کی موت کی وجہ سے آندھرا پردیش کی اسمبلی میں 2 نشستیں مخلوع ہو چکی ہیں۔ 20 جون کو اسمبلی اسپیکر کا انتخاب عمل میں آئے گا۔ 21 کو گورنر اسمبلی اور کونسل کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ 23 اور 24 جون کو گورنر کے خطبے کے سلسلے میں تحریک تشکر پر مباحث ہوں گے۔ 22 جون کو اجلاس نہیں ہوگا۔ آندھرا پردیش اسمبلی اجلاس کے پیش نظر غیر معمولی سیکورٹی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ پرانی اسمبلی کی گیلری میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے صرف میڈیا کے 25 نمائندوں کو داخلے کی اجازت رہے گی۔ وزیٹرز کو ساتھ نہ لانے کی پہلے ہی ارکان کو ہدایت دے دی گئی ہے۔ واضح ہے کہ NTR کے دور میں اسی عمارت میں اسمبلی اجلاس ہوا تھا۔ ریاست کی تقسیم کے بعد پھر اسی عمارت میں آندھرا پردیش اسمبلی کا اجلاس منعقد ہو رہا ہے۔ اسی دوران سٹی پولیس کمشنر نے اسمبلی کے اطراف تحدیدات عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمعرات کی صبح 6 بجے سے 25 جون کی صبح 6 بجے تک جلد سے جلوسوں، دھرنے اور ریلیوں پر امتناع عائد رہے گا۔ سابق وزیر جانا ریڈی نے کہا ہے کہ آندھرا پردیش کی حکومت کی جانب سے پی پی ایل کو برخاست کرنے کے اقدام کے خلاف ERC میں حلف نامہ داخل کیا جائے گا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس طرح کے فیصلے سے تیلگو عوام کا نقصان ہوگا۔ جانا ریڈی نے کہا کہ اس مسئلے پر مرکزی حکومت سے نمائندگی کی جائے گی۔ سابق وزیر نے TV9 اور ABN کی نشریات کو روکے جانے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اسپیکر کے فیصلے تک انتظار کیا جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ چینلز کی جانب سے معافی مانگے جانے کے بعد بھی ان کی نشریات کو روکنا مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے اس کو انتقامی کارروائی قرار دیا ہے۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر پونیلا لکشمیا نے کہا ہے کہ آندھرا پردیش حکومت جلد بازی میں PPL برخاست کرنے کا فیصلہ لے رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اسے ایک طرفہ فیصلہ قرار دیا اور کہا کہ ریاست کی تنظیم جدید بل میں PPL کو برقرار رکھنے کی بات کہی گئی تھی، لہٰذا ایک طرفہ فیصلہ نہیں لیا جانا چاہیے۔ کسی بھی مسئلے کو باہمی اتفاق کے ذریعے حل کرنا چاہیے، پیچیدہ نہیں بنانا چاہیے۔ انہوں نے TV9 اور ABN کی نشریات کو روکے جانے کو بھی غیر جمہوری قرار دیا۔ تلنگانہ کے وزیر ہریش راؤ نے آندھرا حکومت کی جانب سے PPL کو برخاست کیے جانے کے فیصلے کی مذمت کی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ آندھرا پردیش حکومت کا یہ فیصلہ ریاست کی تقسیم کے بل کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ عوام کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تلنگانہ حکومت صورتحال سے نمٹنے کے لیے متبادل انتظامات کر رہی ہے۔ ہریش راؤ نے بتایا کہ PPL کے برخاست ہونے سے تلنگانہ کو 460 میگا واٹ برقی کا نقصان ہوگا۔ انہوں نے آندھرا پردیش کی حکومت سے سوال کیا کہ جب حیدرآباد مشترکہ دارالحکومت ہے تو کیا آندھرا پردیش کی حکومت وزیر اعلیٰ اور وزراء
को बरक़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हरीश राव ने कहा कि मसावी इंसाफ और तेलुगु अवाम की भलाई की बात करने वाले चंद्रबाबु नायडू तेलुगु अवाम को मुश्किलात से दो चार कर रहे हैं। నిన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం ఇది స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్కు విరుద్ధం. యాక్చువల్గా రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ ప్రకారంగా ఆన్గోయింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇప్పటి వరకు ఉన్న పీపీఏలు రాబోయే రోజుల్లో రాబోయేటువంటి ప్రాజెక్టులు అన్నీ కూడా 10 సంవత్సరాల పాటు ఉమ్మడిగా కొనసాగుతాయనేటువంటి విషయాన్ని స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్లో చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. కానీ దాన్ని దేన్ని కూడా పట్టించుకోకుండా నిబంధనలు పాటించకుండా ఏకపక్షంగా పీపీఏలను రద్దు చేస్తూ నిన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవడం ఇది పూర్తిగా అనైతికం. आंध्र प्रदेश हुकूमत के पीपीएल को ख़त्म करने के फैसले का मरकज़ी हुकूमत ने सख्त नोट लेते हुए कहा है कि पीपीएल को जूं का तूं बरकरार रखा जाए। इस सिलसिले में मरकज़ ने आंध्र प्रदेश हुकूमत को हिदायत भी दी है कि जियो नंबर 53 में वाज़ेह तौर पर पीपीएल को जारी रखने की बात कही गई है, लिहाजा तक़सीम जदीद बिल के मुताबिक इसको जारी रखा जाए। मरकज़ी हुकूमत ने ग्रेड में किसी किस्म की मुश्किलात न होने के लिए भी इक़दामात करने की हिदायत दी है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन को माह रमज़ान मुबारक के दौरान जल्द घर जाने की इजाज़त दे दी है। इस सिलसिले में तमाम महकमों को जल्द हिदायत जारी कर दी जाएगी। वाज़ेह है कि वज़ीर आला की सदारत में माह रमज़ान के इंतज़ामात के सिलसिले में मुनक़िदा जायज़ा इजलास में रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की थी, जिसमें मुलाजिमीन को जल्द घर जाने की इजाज़त देने की दरख्वास्त शामिल थी। वज़ीर आला ने चारशंबे को इस सिलसिले में फ़ैसला लेते हुए ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस सिलसिले में तमाम महकमों को अहकामात जारी करें। तेलुगु देशम ने सीमेंट की कीमतों में इजाफे के सिलसिले में तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर असम्बली को गुमराह करने का इल्ज़ाम आयद किया है। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली रेवंत रेड्डी ने कहा कि साबिक़ में सीमेंट की क़िल्लत और कीमतों में इजाफे पर 11 सीमेंट कंपनियों के खिलाफ 6,500 करोड़ रुपए के जुर्माने आयद किए गए थे, लेकिन आज मौजूदा सूरत हाल के बावजूद किसी भी तरह की कार्रवाई करने से हुकूमत गुरेज कर रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि विजिलेंस इन्फोर्समेंट के ज़रिए सीमेंट की सनतों और कंपनियों के गोदामों पर धावे किए जाने चाहिए। उन्होंने इस सिलसिले में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को एक मकतूब भी रवाना किया है। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने कहा है कि महकमे लेबर को मुस्तहकम बनाया जाएगा। महकमे के जायज़ा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि महकमे में मखलूआत जायदादों के अलावा गाड़ियों की कमी है और मुलाजिमीन के तकर्रुरात के लिए फ़ंड्स की भी ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि तमाम ज़रूरतों को पूरा करते हुए महकमे को मजबूत बनाया जाएगा। एन नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि इस सिलसिले में वज़ीर आला को तजावीज़ भी पेश की जाएंगी। వేకెన్సీస్ చాలా ఉన్నాయి. తర్వాత వెహికల్స్ లేవు. వీళ్ళకు కొన్ని డిపార్ట్మెంట్లలో ఎంప్లాయీస్ తక్కువ ఉన్నారు. వేకెన్సీస్ చాలా ఉన్నాయి. అవన్నీ ఫుల్ఫిల్ చేయాలా? ఎఫెక్టివ్గా లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ పనిచేయాలంటే, లేబర్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ పనిచేయాలంటే ఫండ్స్ కావాలా, వీళ్ళకు వెహికల్స్ కావాలా, వీళ్ళకి స్టాఫ్ కావాలా. ఇవన్నీ ప్రొవైడ్ చేసి మంచిగా ఫంక్షన్ చేస్తే महकमे चाइल्ड लेबर के अहदेदारों ने भवानी नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े तालाब कट्टे में 3 मकामात पर धावे करते हुए जबरन मजदूरी कर रहे 36 बच्चों को आज़ाद करा लिया है। महकमे के जॉइंट डायरेक्टर गंगाधर ने बताया कि बिहार और उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले कमसिन बच्चों को चूड़ियाँ बनाने के काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि कंपनी के मालिकीन मफरूर हैं, उनके ख़िलाफ़ चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और कंपनी के मालिकान से एक बच्चे के लिए 20,000 रुपये जुर्माना वसूल करते हुए इन बच्चों के नाम पर यह रकम डिपॉज़िट की जाएगी। उन्होंने बताया कि बच्चों की गैर क़ानूनी मुंतकिली के ज़ाविये से भी पुलिस के ज़रिए तहक़ीक़ात करवाई जाएंगी। 3 लोकेशंस पे बैंगल मेकिंग यूनिट लोकेशंस पे हम रेड करें। चाइल्ड वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और NGOs सब मिलके हम 3 जगह पर एक ही बार छापा मारे और उसमें ऑलमोस्ट 36 चिल्ड्रन वर रेस्क्यूड। उनको बैंगल मेकिंग यूनिट्स में काम करते हुए हमारे को पकड़े गए। तो एम्प्लॉयर लोग कौन है हम अभी वेरीफाई करेंगे, क्योंकि एम्प्लॉयर कोई भी उधर रेस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं मिले, तो इसलिए एम्प्लॉयर कौन है उसको वेरीफाई
करके उसके ऊपर चाइल्ड लेबर एक्ट में प्रोसिक्यूट करेंगे और एक एक चिल्ड्रन के ऊपर अपन 20,000 तक उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। वो कंपनसेशन एम्प्लॉयर के तरफ से हम उनको कंपनसेशन भी दिलाएंगे और एम्प्लॉयर के ऊपर चाइल्ड लेबर एक्ट में प्रोसिक्यूशन भी करेंगे। सर, किस स्टेट के रहने वाले हैं छोटे बच्चे? ये बिहार के है, थोड़े यूपी के है, पूरा अभी डिटेल्स पूरा एक एक बच्चे से बात करने के बाद कुछ मालूम होता है। बच्चों को क्या बोलकर लाया जा रहा था बिहार से? वो काम सिखाने के लिए ला रहे थे, अभी वो पूरा डिटेल्स चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग में आता है। चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग भी वेरीफाई करना, विल हैंड इट आउट टू पुलिस डिपार्टमेंट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द चाइल्ड ट्रैफिकिंग कुछ है क्या, क्योंकि अभी बच्चे उनके पेरेंट्स इधर नहीं है, इधर ही रहते, फिर कैसे लाए वो पूरे वो डिफरेंट डिपार्टमेंट है, हम पुलिस डिपार्टमेंट को हम लिखेंगे इतने चिल्ड्रन रेस्क्यू करे स्टेट से लाए बोल के क्राइम सीसीआर पुलिस के लिए। अंजुमन सज्जादगान मुतवलियान के एक वफ़द ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए वक्फ बोर्ड की तश्कील और वक्फ अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ नुमाइंदगी की। सदर अंजुमन सज्जादगान मुतवलियान मौलाना सैयद शाह अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी सावरी ने बताया कि वफ़द ने वज़ीर आला के साथ वक्फ मसाइल पर बात की है और स्पेशल ऑफिसर के इक़दामात के ताल्लुक़ से वाकिफ़ कराया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने मुस्बत रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए तयक़ुन दिया है कि वो इस मसले पर ज़रूरी इक़दामात करेंगे। आज एसोसिएशन ऑफ सज्जादा नशीन मुतवल्लीज़ खिदमत गुजारान वक्फ का डेलीगेशन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से मुलाकात किया तेलंगाना के और वक्फ के इश्यूज़ के ऊपर बात किए। चीफ मिनिस्टर बड़ी सिंसियरली बहुत ही संजीदगी से हमारे बात सुनी और तयक़ुन दिया कि उस पर अमल करेंगे और जदीद वक्फ बोर्ड जो तश्कील पाने वाला है उस सिलसिले में भी बात हुई और साबिक़ में जो स्पेशल अफसर साहब के जो इक़दामात थे उसके ऊपर भी बात हुई और उस पर चीफ मिनिस्टर साहब ने हमारे डेलीगेशन को ये तयक़ुन दिया कि वो संजीदगी से गौर करेंगे और जो ज़रूरी इक़दामात करना है, हिदायत देना है, वो उस पर अमल करेंगे। वो उन्होंने ताजुब से इस बात पर उन्होंने ताजुब का इजहार किया कि स्पेशल ऑफिसर साहब मीडिया के ज़रिए से ऐलानात क्यों कर रहे थे। उनके जो खिदमात है या वक्फ एक्ट के अंदर कहीं ये सराहत नहीं है कि कोई मुतवल्लियों के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम करे तो वह मीडिया ऐलानात करते रहें। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि उनको सियासी खलल है दिमाग में और सियासत में आने का शौक़ है जो इस तरह से गिरीवी हरकतें कर रहे थे। दोनों रियासतों आंध्रा और तेलंगाना में हज़ारों वक्फ जायदादों के डिजिटलाइजेशन का काम 3 साल मुकम्मल होने के बावजूद आज तक पूरा नहीं हुआ है। अगर ज़िम्मेदार फिलफौर इस जानिब तवज्जो नहीं करेंगे तो ये मसला फिर से तातुल में पड़ जाएगा। पेश है हमारे नुमाइंदे इनायत अली की ये रिपोर्ट। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की हुकूमत ने औकाफी जायदादों के तमाम रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करने और सर्वे करवाने की हिदायत दी थी। ये काम गुज़िश्ता करीब 3 साल से जारी है। पहले सर्वे में 35,703 जायदादों की निशानदही की गई थी और दूसरा सर्वे भी जारी है, लेकिन 3 साल के तवील अरसे में सिर्फ 14,000 जायदादों का डिजिटलाइजेशन हुआ है और वो भी जुज़वी तौर पर। अब हुकूमत ने बाकी काम जुलाई तक मुकम्मल कर लेने की हिदायत दी है। जाहिर है ये काम इस रफ्तार से मुमकिन ही नहीं है। 4 अफराद पर मुश्तमल अमला जुलाई तक ये काम कैसे मुकम्मल कर सकता है। औकाफी सर्वे की जिम्मेदारी मिर्जा हसन अली बेग को दी गई है, लेकिन क्या इतने कम अरसे में वो 35,000 जायदादों के सर्वे में इंसाफ कर पाएंगे? हुकूमत इस हकीकत को अच्छी तरह जानती है कि हजारों वक्फ जायदादों पर नाजायज कब्जे हो चुके हैं। सर्वे का मकसद यह है कि हकीकी निशानदही हो ताकि निशानदही के बाद उसकी निगरानी और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। अगर निशानदही में खामी रह गई तो तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो पाएगा? औकाफी जायदादों को डिजिटलाइजेशन करने के लिए हुकूमत ने कमेटी तश्कील दी है, जिसमें महकमे अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी, रियासती सर्वे कमिश्नर, AP लीगल जॉइंट सेक्रेटरी, महकमे मालिया के डिप्टी सेक्रेटरी, वक्फ बोर्ड के CEO, सदरनशीन वक्फ बोर्ड के अलावा आंध्रा से बादशाह साहब और तेलंगाना से खलीकुर रहमान शामिल हैं। लेकिन इस कमेटी का हाल यह है कि गुज़िश्ता 3 साल में सिर्फ मीटिंग्स तलब की गई। ऐसी भी एक मीटिंग उस वक्त के सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद दाना किशोर की दिलचस्पी से हुई। वो चाहते थे कि इस काम के लिए 150 था 200 अफराद पर अमले का तकर्रुर किया जाए,
लेकिन उनका तबादला कर दिया गया। तबादला हुए 1 साल का अरसा गुजर चुका है। नए सेक्रेटरी ने अब तक इस मसले पर संजीदा कोशिश ही नहीं की है। जो अमला डिजिटलाइजेशन के लिए मुतयन किया गया था उसको भी तकसीम रियासत के कामों में लगा दिया गया, जिसकी वजह से सारा काम ठप होकर रह गया है। एक रुकन ने इस सिलसिले में बारहा नुमाइंदगी भी की, लेकिन पूरी तरह खामोशी इख्तियार कर ली गई है। अगर इस अहम मसले पर जिम्मेदार वाकई संजीदा हैं तो काम में तेजी पैदा करना और स्टाफ की तादाद में इजाफा करना जरूरी होगा, वरना यही समझा जाएगा कि सारे इक़दामात हाथी के दांत की तरह है। इन हालात में मिर्जा हसन अली बेग से तवक्कुआत वाबस्ता हैं कि वह न सिर्फ संजीदा बल्कि तेज रफ्तार इक़दामात करेंगे, वरना यह मसला साबिक़ की तरह खटाई में ही पड़ जाएगा। माह मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक के दौरान माक़ूल इंतज़ामात के लिए रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने सरदार महल में ज़ोनल कमिश्नर और दीगर आला अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। रुकन बलदिया मुर्तज़ा अली और मजलिसी कारकुन भी इजलास में मौजूद थे। अहमद बलाला ने स्ट्रीट लाइट्स की दुरुस्तगी, कचरे की निकासी, मलबे की सफाई और मौसम बरसात के पेश नज़र बलदिया के एमरजेंसी स्क्वाड को तैयार रखने के लिए नुमाइंदगी की। जोनल कमिश्नर बाला सुब्रमण्यम रेड्डी ने तयक़ुन दिया कि रमज़ान के दौरान आवाम को शिकायतों का मौका न देने की हत्तल इम्कान कोशिश की जाएगी। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने MD वाटर वर्क्स श्यामला राव से मुलाकात की और अपने हल्के के ज़ेर तकमील प्रोजेक्ट्स की जल्द तकमील के लिए नुमाइंदगी की। रुकन असम्बली ने तामीरी कामों की सुस्त रवि पर भी बरहमी का इजहार किया। बीजेपी के एक वफ्द ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए बुनकरों के कर्जे माफ़ करने का मुतालबा किया है। पार्टी के फ्लोर लीडर के लक्ष्मण ने कहा कि ज़री शोबे के बाद बुनकरों की तादाद ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए बुनकरों के मसाइल पर तवज्जो दी जानी चाहिए। बीजेपी ने किसानों की तर्ज पर बुनकरों के कर्जे माफ़ करने के इक़दामात पर जोर दिया। उन्होंने एपको की भी तक़सीम का मुतालबा किया है। TNGOs के सदर देवी प्रसाद ने मुलाजिमीन को मशवरा दिया है कि तक़सीम के सिलसिले में अपने एतराज़ात शिकायती शोबे से रुजू किए जाएँ। उन्होंने बताया कि हुकूमत तेलंगाना मुलाजिमीन के लिए अलहदा कमेटी भी तश्कील दे रही है। देवी प्रसाद ने कहा कि मुलाजिमीन अपनी शिकायत HODs के ज़रिए दर्ज करवाएँ ताकि मुलाजिमीन के साथ इंसाफ हो सके। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि इराक़ में मुक़ीम तेलंगाना के तारिकीन वतन को वापस लाने के लिए तमाम मुमकिना इक़दामात किए जा रहे हैं। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक करीब 600 तेलंगाना के बाशिंदे इराक़ में मौजूद हैं। 1 या 2 दिन में मज़ीद तफ़सीलात सामने आएंगी। उन्होंने बताया कि मरकज़ी हुकूमत से भी रियासत हुकूमत राब्ते में है और तेलंगाना के तमाम तारिकीन वतन को हिफाजत के साथ वापस लाया जाएगा। बीजेपी लीडर रामचंद्र ने बाज़ चैनल्स पर आयद की गई पाबंदी को नामुनासिब करार दिया है। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि जब चैनल्स ने अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया है तो उसके बाद भी कार्रवाई करना मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक सबको चलना चाहिए। उन्होंने इस कार्रवाई को इंतकामी कार्रवाई करार दिया। LB नगर के इलाके पेद्दा अंबरपेट में एक कार ने ठहरी हुई लॉरी को टक्कर दी, जिसके नतीजे में 2 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए, जबकि एक शख्स शदीद ज़ख्मी है। LB नगर पुलिस ने मीडिया को बताया कि ये वाक़या चहारशंबे को अल सुबह उस वक्त पेश आया जब तेज़ रफ्तार कार बेकाबू होकर लॉरी से टकरा गई। LB नगर पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है, जबकि ज़ख्मी शख्स को एक खानगी दवाखाने में शरीक कर दिया गया। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बम रखे जाने की इत्तला से सनसनी फैल गई। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के अहदेदार ने बताया कि नामालूम शख्स ने फ़ोन करके प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बम रखे जाने की इत्तला दी, जिस पर फौरी बम स्क्वाड को तलब करते हुए प्लेटफॉर्म पर तलाशी कार्रवाई अंजाम दी गई, जिसके बाद ये इत्तला झूठी साबित हुई। पुलिस फ़ोन करने वाले शख्स का पता चलाने की कोशिश कर रही है। कुतुबुल्लाहपुर के इलाके में एक स्क्रैप की दुकान में आग लग गई। बताया जाता है कि शाहपुर के इलाके में लिंगम्मा नामी एक खातून की प्लास्टिक की
اسکریپ کی دکان تھی جس میں اچانک آگ لگنے سے سارا پلاسٹک کا اسکریپ جل کر تباہ ہو گیا۔ آگ کے شعلوں کی وجہ سے متعدد مکانات بھی جزوی طور پر متاثر ہوئے۔ جے ڈی میٹلا کے فائر بریگیڈ نے کوشش کر کے آگ بجھائی۔ مقامی افراد نے شکایت کرتے ہوئے بتایا کہ رہائشی علاقوں میں اسکریپ کی دکانیں اور گودام ہونے سے ماکینوں کو مشکلات درپیش ہیں۔ پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ اور آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ آندھرا اسمبلی کے پہلے اجلاس کا جمعرات کو آغاز، 20 جون کو اسپیکر کا انتخاب اور 21 کو مقننہ کے مشترکہ اجلاس سے گورنر کا خطاب۔ آندھرا حکومت کی جانب سے پی پی ایل کو برخاست کیے جانے کا فیصلہ، جلد بازی اقدام، تلنگانہ کے سیاسی قائدین کی جانب سے مذمت۔ رمضان المبارک کے دوران مسلم سرکاری ملازمین کو جلد گھر جانے کی اجازت، تمام محکموں کو حکم نامے جاری کرنے عہدیداروں کو وزیر اعلیٰ کی ہدایت۔ تالاب کٹے میں 3 مقامات پر محکمہ چائلڈ لیبر کے دھاوے، 36 بچوں کو جبراً مزدوری سے آزاد کرایا گیا۔ اور ایل بی نگر میں ٹھہری ہوئی لاری سے بے قابو کار کا تصادم، 2 افراد برسر موقع ہلاک۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔